Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to talk about how efficiently you can search jobs for you. Okay, either it is internship or full time. तो बेसिकली मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने सीनियर से सोर्स करते हैं या फिर मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं दैट इंटर्नशिप कैसे ढूंढें, जॉब्स कैसे ढूंढें, ठीक है। बट इफ़ आई टेल यू, पहले मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसे ही मतलब परेशान रहता था कहाँ मिलेगी इंटर्नशिप, इंटर्नशाला में मिलेगी या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वर्क के लिए इधर उधर, ठीक है, फ्रीलांस वर्क कहाँ पे मिलेगा, इस तरह परेशान रहते थे लोग। बट इफ़ आई टेल यू, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी एंड इफ़ यू विल यूज़ देम इन अ प्रॉपर वे, देयर इज़ नो नीड टू लाइक गो हेयर एंड देयर। तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक दो प्लेटफॉर्म्स और हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊँगा। तो कहीं तुम्हें और जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डू ऑल योर थिंग हेयर इन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ओके, बट ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड टू नो कैसे एक्चुअली में ये सब मतलब सर्च किया जाता है। सर्च करना, तुमने ये चीज़ें सुनी भी होंगी कि गूगल सर्च करना भी लाइक इज़ अ काइंड ऑफ स्किल। ओके, सब कोई हर चीज़ गूगल सर्च नहीं कर सकता। तो गूगल सर्च इज़ ऑल्सो अ स्किल इन द सेम वे टू यूज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म इज़ काइंड ऑफ स्किल। ठीक है, अगर तुम वो स्किल एक्वायर कर लेते हो तुम उस प्लेटफॉर्म का पूरा बेनिफिट ले पाओगे। इफ़ नॉट ऑब्वियसली तो तुम इधर उधर भटकते रह जाओगे। ओके, so before starting this video, obviously we'll talk about everything which I'm going to discuss, which I have already discussed till now. I will talk in deep about everything, but before that let me just tell you some things about Newton School. And before that also, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies Newton School, just go subscribe this YouTube channel because I am bringing new videos every day regularly for you. Either you can say that is a editorial video of lead code, code forces, ad coder, any programming contest, or you can say it is about blockchain development, or you can say it is about like these general questions which people ask me. Okay, and after that, if you haven't checked Newton School pay after placement program yet, just go check their pay after placement program, where what they are doing, they will train you as a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed. Like, this sounds like somewhat surprising that how they are going to get you placed, but obviously they have a proper plan for that. So if you want to know more about this, just go to the link in description, or you can also get the contact details. Okay, where you can get a follow-up from their side. And if you want to check their insights, like how many students they have already get placed, what is the highest CTC, how many like students have participated, what is the average package, reviews of students who have already opted their course, you can just visit their website and check all of their insights for pay after placement program. Most amazing thing, their name intuits that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company between 5 to 40 LPA. Okay, so this is it. If you want to know more about this, just go to the link in description and just boom. Okay, get the most out of it. Now, so probably first thing we are going to talk about in this video is how you can search for internship and jobs. Okay, so you will open your LinkedIn. अगर तुमने अभी तक अपनी LinkedIn की प्रोफाइल नहीं बनाई है, so let me just tell you, जाओ जल्दी से अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवाओ। ओके, और कनेक्शंस बनाना शुरू करो। ओके, कनेक्शंस में तुम्हें जिस इंडस्ट्री साइड जाना है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, लिंक्डइन में तुम्हें काफ़ी प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे, मैनेजमेंट की साइड के भी मिल जाएंगे, डेवलपमेंट की आईटी सेक्टर के साइड के भी मिल जाएंगे, फिर तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स भी मिल जाएंगे, प्रोडक्ट मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स, फिर तुम्हें काफ़ी दूसरी फील्ड के भी इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। सो द मोर काइंड ऑफ पीपल यू फॉलो, तुम्हें वैसे ही फीड्स में पोस्ट मिलेंगे, तुम्हें वैसे ही रेफरेंसेस मिलेंगे अपनी फीड पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम उसी फील्ड के लोगों को फॉलो करो या कनेक्शन बनाओ जिस फील्ड से तुम बिलोंग करते हो। ओके, इफ़ यू आर एन आईटी इंडस्ट्री गाय, जस्ट फॉलो और लाइक तुम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन उन्हीं से बनाओ, क्योंकि वही लोग, लिंक्डइन की काफ़ी एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, जब तुम्हारे लोग फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन यहाँ तक जाती हैं, ठीक है, तो तुम सपोज़ किसी आईटी इंडस्ट्री के पर्सन को अपने मतलब
कनेक्शन पे लाए हो, वो कोई पोस्ट लाइक करेगा आईटी इंडस्ट्री के गाय की, तो वो भी तुम्हारी फीड में आने लगेगी। ऐसे सारी एल्गोरिथम्स वर्क करती हैं। अब इन केस तुम आईटी इंडस्ट्री के पर्सन हो, ठीक है, तुम आईटी सेक्टर में जाने वाले हो एंड यू हैव फॉलोड मैनेजमेंट सेक्टर, ओके, अब तुम वहाँ पे मैनेजमेंट सेक्टर के लोगों को कनेक्शन बना रखा है, फॉलो कर रखा है, और तुमने काफ़ी सारी कंपनीज के पेजेस भी उसी फील्ड के फॉलो कर रखे हैं, यू विल नॉट गेट रेलिवेंट कंटेंट ऑन योर फीड, इट इज़ ऑब्वियस, ओके। तुम खाली उस फील्ड का कंटेंट तुम्हें अपनी फीड में मिलेगा। सो मेक श्योर whom you are following and whom you are getting connected with, okay, this is the first thing. Second thing, more and more connections, more and more diversity in your feed, sorry, more and more diversity in your feed, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तुम्हें पोस्ट दिखेंगे, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तुम्हें रेफरल पोस्ट मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अप्लाई करने के चांसेस मिल जाए, ठीक है। दैट्स वाई कनेक्शन आर इम्पॉर्टेंट। अगेन किससे कनेक्ट करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। अब मेन पॉइंट जो था मेरा इस वीडियो का, वो था तुम्हारा जॉब सर्च, ठीक है। तुम्हें जॉब सर्च कैसे करनी है। अब अगर तुमने लिंक्डइन पहले यूज़ नहीं किया है, तुम्हें ऊपर की साइड जॉब सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट रिलेवेंट प्लेस वेयर यू कैन सर्च जॉब फॉर यू, फाइन। अब हो सकता है काफ़ी लोगों ने इसको इग्नोर किया हो या फिर यूज़ ना किया हो। होता क्या है एग्जैक्टली, द स्किल सेट यू विल अपडेट इन योर प्रोफाइल, जो भी तुम अपने स्किल सेट्स डालोगे अपनी प्रोफाइल में, ठीक है, वहाँ से जो भी तुम्हारे टैग्स होंगे, उन सब से जितनी भी रिलेवेंट जॉब्स होंगी, वो सारी की सारी तुम्हें अपने जॉब सेक्शन में मिल जाएंगी, फाइन। अब इफ़ यू विल से कि इतनी सारी जॉब्स हैं, क्या इनसे रिप्लाई आता है, ऑब्वियसली इनसे रिप्लाई आता है, ठीक है। रिप्लाई इन द सेंस तुम इनमें अप्लाई करोगे, तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी के बहकावे में मत आना, ठीक है, कि ये वेस्ट है या कुछ भी है। जस्ट गो सर्च मोस्ट रेलेवेंट प्रोफाइल फॉर यू, जहाँ जहाँ तुम सर्च कर सकते हो सर्च करो और अप्लाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें 10 में से 2 कंपनियों का अगर रिस्पॉन्स आता है, दैट इज़ वेरी गुड रिस्पॉन्स रेशियो, अगर मैं बोलूँ, ठीक है। काफ़ी बार काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, टाइम नहीं होता लोगों के पास रिप्लाई करने का, या फिर हायरिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, वो लोग अपना पोस्ट हटाना भूल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे पास रिप्लाई नहीं आया। बट इन एनी केस अगर तुम अप्लाई जितना ज़्यादा कर सकते हो, ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड, ठीक है। सो अप्लाई मोर एंड मोर, फाइन। तो जितनी ज़्यादा प्रोफाइल्स तुम्हें रिलेवेंट लग रही हैं उन सब में अप्लाई करो। एंड फॉर इंटर्नशिप ऑल्सो तुम्हें यहीं पे मिल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी की सारी कंपनीज़ हैं, इन सब में हायरिंग निकली हुई है। अगर तुम जाओगे तुम्हें इजी अप्लाई भी मिल जाएगा, या फिर तुम खोल सकते हो, ठीक है, इनका जो भी जॉब लिंक है वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। अब इफ़ यू आर लाइक एबल टू गेट अ रेफरल फॉर द सेम जॉब प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे बात आती है तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग को ज़्यादा ईजी बनाने की या फिर तुम्हारे चांसेस बढ़ाने की, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दिखी है, ठीक है, जिसका कनेक्शन तुम्हारे कोई लिंक्डइन पे है ऑलरेडी, फर्स्ट या सेकंड कनेक्शन, या फिर तुमने किसी को देखा था वो इस कंपनी में ऑलरेडी है, व्हाट यू कैन सिंपली डू, यू कैन कनेक्ट विद हिम और हर एंड यू कैन आस्क फॉर अ रेफरल फॉर द सेम जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से तुम अपना शॉर्ट लिस्टिंग का लाइक चांसेस बढ़ा सकते हो, फाइन। अब नेवर हेजिटेट इन आस्किंग फॉर अ रेफरल, ओके। जस्ट अपना CV अच्छे से बनाओ, रेज्यूम अपना अच्छे से बनाओ, प्रॉपर टेम्पलेट यूज़ करो, ठीक है, लीफ ओवर लीफ से प्रॉपर टेम्पलेट यूज़ करो, डोंट यूज़ वर्डपैड और समथिंग, ठीक, क्योंकि काफ़ी बार तुम्हारा जो सर्चिंग होती है वो टैग बेस्ड होती है। एंड एक तुम अगर प्रॉपर टेम्पलेट यूज़ करोगे, वहाँ पे तुम्हारे टैग्स ईजली लाइक ईजली ग्रैबेबल होंगे, ठीक है, तुम ऐसे कह सकते हो, सॉरी फॉर बैड इंग्लिश। तो तुम ऐसे अपना एक टेम्पलेट बेस्ड रिज्यूम बनाओ, ठीक है, ऐसे कहीं से भी वर्ड पैड या नोट पैड कहीं से भी रिज्यूम मत बनाओ, एंड देन आस्क फॉर रेफरल, ठीक है। अब सारी की सारी स्किल सेट्स रिज्यूम के बारे में हम किसी और वीडियो में ऑब्वियसली बात करने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं, ठीक है। तो I already told you that if you know someone in your connection or in second connection or third connection, just go and ask for a referral to them. If you think you are तुम इस जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो और तुम इसके लिए रेफरल मांग सकते हो, एंड दे आर गोइंग टू रेफर यू, ओके। इफ़ इन एनी
इफ़ अगर उन्होंने किसी वजह से रेफ़र नहीं किया या उन्होंने सीन नहीं किया, नो नीड ऑफ वरिंग, ओके, जस्ट गो एंड अप्लाई डायरेक्टली। उससे ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, दैट इज़ फाइन। तुमने 10 और कंपनियों में अप्लाई कर रखा है, दैट डजेंट मैटर, ओके। आफ्टर दैट ये हो गया तुम्हारा जॉब सर्च और लाइक इंटर्न सर्चिंग की, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी फ्रीलांस के काम की। हो सकता है कई बार तुम अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तुम्हारे पास स्किल सेट है ऑलरेडी, तुम्हारे पास स्किल सेट है, तुमने अपने 12th में या इस अपना जो ड्रॉप ईयर था उसमें तुमने ऑलरेडी डिज़ाइनिंग सीख लिया, या कुछ वेब डेवलपमेंट आता है, या फोटोशॉप वगैरह आता है। काफ़ी सारे स्किल सेट्स होते हैं जिनकी फ्रीलांसिंग में मांग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बट ऑब्वियसली कोई अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में कोई फ्रीलांस का काम इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क वर्क और टाइम टेकिंग वर्क, ठीक है। तो अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग का वर्क ढूंढना है, यू कैन जस्ट गो टू फ्रीलांस और अपवर्क, ओके। अब तुम बोलोगे वहाँ पे भी जॉब्स नहीं मिलती हैं या फिर इतनी जल्दी आसानी से काम नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली एनीवन हु इज़ सर्चिंग फॉर हायरिंग सम ऑफ यू फॉर डिज़ाइनिंग और समथिंग फॉर वेब डेवलपमेंट, यू नीड टू हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली, ठीक है। अगर तुम डिज़ाइनिंग के लिए फ्रीलांस के काम में अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ऑलरेडी टू शो केस, ओके। अगर मैं हायरिंग की बात करूं, जॉब्स या इंटर्न्स की, वहाँ पर तुम्हारा रिज्यूम देख के तो तुम्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट फ्रीलांस के काम थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, यू कैन से, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेन यू, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू समथिंग, they will just hand over the work to you and you have to simply like get them the results as soon as possible, ठीक है। काफ़ी बार होता क्या है, तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुछ टास्क मिलेगा, तुम्हें परफॉर्म करके भी दिखाना पड़ेगा, एंड मैनी ऑफ द टाइम्स दे विल पे यू फॉर दी सैम्पल टास्क टू, ठीक है। तो मेक श्योर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर फ्रीलांस वर्क एट अपवर्क और फ्रीलांस और फाइवर, ठीक है, जस्ट मेक सम गुड प्रोजेक्ट्स। अगर तुम्हें किसी भी स्किल के लिए फ्रीलांस वर्क ढूंढ रहे हो, ऑब्वियसली तुम उस पर पहले से मास्टर हो, ओके, या फिर तुम्हें एक अच्छे लेवल पे वो आती है, तो मेक श्योर यू हैव सम प्रोजेक्ट्स। तुम्हारा कोई टेक स्टैक पढ़ के ही तुम्हें फ्रीलांस का वर्क हैंड ओवर नहीं करने वाला, ठीक है। तो दीज वर सम थिंग्स which you need to know about job searching or work searching over LinkedIn, over Upwork, over Fiverr, and there are many other platforms, but these are like बेस्ट इन देयर फील्ड, ठीक है। तो तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स इन सम टाइम ओनली, ठीक है। तुम कीप अप्लाइंग। वन मोर थिंग विच यू कैन डू इज़ कोल्ड ईमेल्स, ओके। कोल्ड ईमेल्स इज समथिंग, तुम रिक्रूटर्स के ईमेल्स उठा सकते हो डायरेक्टली लिंक्डइन से या कहीं से भी। तुम्हें काफ़ी सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, रिक्रूटर एट दिस, रिक्रूटर एट दिस, रिक्रूटर एट दिस बिग कंपनीज, ओके। यू कैन जस्ट grab the email from their profile and directly mail them, ठीक है। मोर एंड मोर वो तुम्हारा रिप्लाई नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दैट डजेंट मैटर ऑब्वियसली, राइट, ओके। सो जस्ट कोल्ड ईमेल देम एंड इफ़ आई टेल यू मैनी टाइम, अगर कोई भी हायरिंग खुलती है, ठीक है, या कोई भी हायरिंग ऑन गोइंग होती है उस कंपनी में, दे गो थ्रू ऑल द ईमेल्स और काफ़ी बार तुम्हें रिस्पॉन्स आ जाता है। हो सकता है उस टाइम तुम्हें रिस्पॉन्स ना आया हो, बट आफ्टर 2 months और 3 months बाद तुम्हें रिस्पॉन्स आ जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम जब भी कोल्ड ईमेल भेज रहे हो तो जो अपना सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से टाइप करो, प्रॉपर प्रोफाइल का नाम लिखो, जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो वो लिखो, ठीक है। कुछ भी ऐसे ही मत लिख दो कि आई एम अप्लाइंग फॉर SD रोल और समथिंग, शॉर्ट में लिखो बट प्रॉपर टर्म्स में लिखो, ठीक है। टर्म्स इन द सेंस, ताकि वो जो तुम्हारे टर्म्स हैं टैग्स में सर्च होके एक बार स्टैंड आउट कर सके, ठीक है। आई नो, आई होप जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर एक कीवर्ड्स यूज़ करो सब्जेक्ट लिखने में, ठीक है, अपने जब भी तुम कोल्ड ईमेल्स करो। तो दिस इज़ द थिंग, आई गेस जितना भी मुझे इस वीडियो में तुम्हें बताना था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी तुम्हारे लिए। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन सिंपली आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज लाइक I will reply as soon as possible. Again, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies Newton School, just go subscribe this YouTube channel, and you can also suggest me some topics for YouTube video over which you want a video, and I'll try to make them in my free time obviously. And in the end, if you haven't subscribed, if you haven't checked Newton School Pay After Placement program, you can just go to the link in description or also get the contact details from description, over which you will get a follow-up from their side also,
Okay, so thank you guys for watching this video. Share this video to your friends and like this video too. Thank you guys for watching.